artists and we are exhibiting our charcoal work, and there's a oil painting here. So these are hyper realistic charcoal paintings. The colored ones have used pastel and charcoal, but other black and whites are all charcoal paintings. अच्छा इसका प्राइस है और क्या प्राइस होगा और Uh, the prices vary between 30,000 to up to 5 lakh. The oil painting, of course, is the highest priced one because that's a very exclusive piece. Uh, हमारा विजिटिंग कार्ड्स हैं यहाँ पे, उसमें हमारे नंबर्स और इंस्टाग्राम आईडीज़ वगैरह दिए हुए हैं, सो पीपल कैन look us up on Instagram and they can contact us on our phone numbers. My name is Tarunpreet Kaur, and this panel belongs to me. You will generally find a girl in my painting, a girl inside me who wants to fly high. It's like this, beyond the wall, and waiting for the wings. It's मतलब कि she wants to gain more heights. Recently, a spiritual touch has been added to my painting, like the bubbles. I'm from a Sikh family. There is one verses, जैसे जलते बुद्ध बुता उपजे बिन से नीत जग रचना तैसे रची सुन नानके मीत, means the universe has been created like a bubble in the water. We come, we go, we come, we go. And in this short span of life, our aim is to meet Almighty. And this is also conceptual art. I asking the universe, where is my identity? And the one painting has to be made. Like if we join the hands with Almighty who has made this universe, what a big identity we will have. I belong to Kharagpur, and I work on these things. Hello, I'm Karthik Garasia. I'm an architect and also an artist. So I'm a conceptual artist. So all my paintings you'll see, there is a concept behind that. And I'm from Kamla Reja, which is the architect field, which drags me to do this kind of a artwork. Yes, thank you. हेलो, मैं प्रीति मिसाड़ हूँ और ये मेरे आर्ट वर्क्स है। मैं एक्रेलिक में करती हूँ, एक्रेलिक रेजिन आर्ट में करती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग एमबीए है, पर लॉकडाउन से मैं ये पेंटिंग्स कर रही हूँ और लॉकडाउन ने ही मुझे इंस्पायर किया है। ओके, थैंक यू। लॉकडाउन ने ही मुझे इंस्पायर किया है कि मैं आर्ट फील्ड में जाऊँ, तो मैं अब फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ और मैंने अलग अलग टाइप के आर्ट ट्राई किए हैं, जिसमें रेजिन आर्ट है, स्कल्पचर्स है, फिर पोर्ट्रेट्स भी करती हूँ और एक्रेलिक लैंडस्केप भी करती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, PM Art Arena। थैंक यू। Yeah, so my name is Minu Singh and my fascia name is Bluescapes, and so as you can see I've got about 40 odd paintings over here, and I mostly work on acrylic on canvas and acrylic on paper as well, and also watercolors. And so there's a lot of thought that has gone into each of my paintings, and that is what has actually you know it's not just paintings, it is my thoughts as well, and what I experienced emotionally or mentally at the time of making my paintings. So they're extremely dear to me, and so that's it. So my visits to various places in the country and elsewhere, those have also influenced the way I have created. For example, these two paintings over here, and then my mental state at a time when I'm feeling lonely. मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मेरा ब्रोशर पर टेलीफोन नंबर है, इंस्टाग्राम है मीनू सिंह, मेरा इंस्टाग्राम है, और साथ में फेसबुक पे भी, और टेलीफोन नंबर भी है। मैं सत्या सुरेश हूँ। मैं ये एक पैशन से स्टार्ट हुआ था, फाइनली ये इंस्टाग्राम में डाली तो उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छे थे, तो फिर वो बिज़नेस से कन्वर्ट हो गया। मेरे काम जो है सब जो होते हैं वो वुडन स्कल्पचर्स में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड्स यूज़ करते हैं हम लोग, शीशम, मैंगो वुड, और वो वुड को एनहांस करने के लिए इंडियन ट्रेडिशन आर्ट्स का मॉडिफाई करके हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो इसमें ट्रेडिशन आर्ट्स में होते पिछवाई आर्ट्स है,
पट्टचित्र आर्ट्स और लिपन सब क्लब करके आर्ट करते हैं, और ये सब होम डेकोर के लिए यूज़ होते हैं, और छोटे छोटे बहुत सारे वेरिएंट्स रखे हैं, वो गिफ्टिंग ऑप्शंस के लिए बहुत होते हैं, और रिटर्न गिफ्ट्स के लिए वो सब बहुत ही चल रहा है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वुड एंड कलर करके, आप वहाँ ढूंढ सकते हो उसको। यूट्यूब में भी चैनल है वही वुड एंड कलर बाय सत्या करके, आप रीच हो सकते हो। मेरा नाम रिद्धि जैन है और मुझे पेंटिंग का काफ़ी शौक़ था, बट अब जाके मतलब स्टार्ट किया है, और मतलब ब्राइट कलर्स यूज़ करना और अलग अलग थीम यूज़ करना, ये मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे है पेंटिंग। थैंक यू। और ये कैसे पहुँचाओगे और कैसे यहाँ विजिट करें? मेरा इंस्टा अकाउंट है फाइन रिद्धि आर्ट्स, और ठीक है। हम जयपुर से हैं। द ग्रेट इंडियन आर्ट हमारा 100 साल पुराना बिजनेस है ये, है ना। और ये मिनिएचर आर्ट है जो कम से कम 600 साल से हिंदुस्तान में चल रहा है। ये निडलवर्क पिछवाई है, ये पुराना सिल्वर, प्योर सिल्वर का है, और ये अलग अलग मिनिएचर्स पेंटिंग है, ये जैन पेंटिंग्स हैं। हम जयपुर से हैं और पिछले 100 साल से यही काम कर रहे हैं हम लोग। बिंदु दारा सिंह हैं, उनके जो है साथ काम करते हैं, वो हमारे जानकार हैं। उन्होंने बोला आप आइए यहाँ पे एग्जिबिट करिए। हाँ, इंस्टा पे द ग्रेट इंडियन आर्ट से हमारा अकाउंट है, उससे हम काम कर रहे हैं। और पब्लिक ठीक है यहाँ पे, अभी तो आज फर्स्ट डे है और भीड़ है यहाँ पे। And my artwork is here. So I have done it in 3 parts. What you see here is in pastel colors, which are in season. So a lot of pastel work here, some minimals also. And here we have seascapes, so everything around ocean. And here we have abstracts. So basically my work is into acrylics, and I like to explore different content. And if you want to follow me, you can follow me on Instagram at Art by Dipali. Yeah, and I see a lot of people visiting this booth for the work that you're seeing here. Also, the other artists which is not here, their work is also very much appreciated, especially for this one. And for the lion or the cub's eyes. And for my work, mostly the pastel shades are appreciated. Yeah, thank you. जी, मेरा नाम पवन पागल है और मैं पलवल हरियाणा फरीदाबाद से हूँ। और मैंने यहाँ पर ये जो गोरेगांव में एग्जीबिशन लगाई है, तो यहाँ पर बहुत से विजिटर्स आ रहे हैं, और अभी आज पहला दिन है तो इसलिए अभी इनॉग्रेशन होना बाकी है, तो थोड़ी भीड़ कम है। जैसे शाम होगी तो मुंबई रात का शहर है, तो शाम होते ही विजिटर्स निकलेंगे। मेरी पेंटिंग के जो विषय हैं वो प्रकृति है, इधर देखिएगा, प्रकृति है और लैंडस्केप है, और जैसे जो हमारे पुराने प्रतीक हैं, जो धार्मिक प्रतीक हैं, उनको लेकर मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। और मेरा जो माध्यम है वो वाटर कलर, ऑयल, एक्रिलिक एंड बहुत तरीके के जो अलग कमर्शियल वर्क होते हैं उस तरह के, और पोर्ट्रेट्स वर्क पे भी मैंने बहुत काम किया है। और अभी फ़िलहाल मैं मुंबई में ही रह रहा हूँ और यहाँ पर रहकर अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशंस लगा रहा हूँ। और जो यहाँ मुंबई के जो लोग हैं वो कला को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और वो एक कलात्मक हृदय के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कला नगरी है। जैसे दिल्ली है तो मुंबई भी मुझे लगा कि यहाँ आर्टिस्ट लोग हैं जो आम आदमी भी कला को समझते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से। मुझसे कांटेक्ट आप, मेरा जो है कि इंस्टाग्राम आईडी है जो कि द क्रिएटिव पागल, PAAGAL, तो द क्रिएटिव पागल पर आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से मुझे आप ढूंढ सकते हैं। हेलो, माय नेम इज़ हर्षदा बच्छाव। मैं यहाँ मुंबई में आज द हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन को कंप्लीट करने आई हूँ। यहाँ मैंने अपनी पेंटिंग्स लगाई है एग्जीबिशन के लिए। बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। अच्छा लग रहा है। विजिटर्स आ रहे हैं, पेंटिंग को देख रहे हैं। अच्छा है। थैंक यू। इंस्टाग्राम आईडी मेरा बच्छाव, हर्षु बच्छाव के नाम से है। आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत आनंद आया यहाँ आके।
1 साल की मेहनत है ये मियाँ बीवी की, ज्योति जी और मुकेश जी की। बहुत इनने मुझे समझाया था कि क्या क्या होने वाला है, और आज मुझे समझ में आ रहा है कि वाकई वो होना शुरू हो गया है। 1 साल से आई थिंक ऊपर हो गया जो हम लगे हैं कि हार्ट ऑफ आर्ट एक ब्यूटीफुल एग्जीबिशन हो, ऐसी एग्जीबिशन हो जो भी आर्टिस्ट इसके साथ जुड़े वो ज़िंदगी भर के लिए जुड़े और हमेशा उसकी ऊंचे जाते जाए, स्तर बढ़ते जाए और फेमस होते जाए, उसकी रेपुटेशन बढ़ती जाए, उसके प्राइस बढ़ती जाए, और वो जो आर्ट का पीस हम अपने घर में रखते हैं वो उसकी वैल्यू बढ़ते जाए। तो ये हमारा मकसद था और उसी को सोच के हमने ये स्टार्ट किया। अब ये एग्जीबिशन का पहला दिन था, थर्सडे था, एंड आई थिंक इट वाज ब्रिलियंटली डन। आई एम प्राउड ऑफ देम, दे हैव रियली वर्कड हार्ड एंड वो रंग लाएगा, इस 100% श्योर। मेन चीज़ ये है कि ये एग्जीबिशन 3 दिन की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी हार्ट ऑफ आर्ट फैमिली पूरी जुड़ती जाए पूरे देश से, विदेश से, सब जगह से लोग आके हमारे साथ जुड़े, और ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो कि कोई भी आर्टिस्ट अपनी फ़ोटो यहाँ डालेगा और वो पूरी दुनिया में कोई भी खरीद पाए। ये हमारा एंड का मोटो और मकसद यही है। बट आई थिंक इट इज़ अ ब्रिलियंटली डन एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट देम, वेल डन। सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सभी स्टॉल में क्या रहते हैं, क्या सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है? बहुत ब्यूटीफुल आर्टिस्ट हैं, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। कई आर्टिस्ट हैं जो हैंडीकैप्ड भी हैं। एक लड़का है जिसके हाथ नहीं है, वो पैरों से पेंटिंग बना रहा है, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बना रहा है। जो भगवानों की पेंटिंग्स थी, जो अलग अलग तरीके की लोगों ने बनाई हैं चीज़ें, चारकोल पेंटिंग, जो आर्ट इंडिया में ख़त्म हो रहे हैं, मधुबनी आर्ट जो बहुत सालों से हम लोग सुनते थे बचपन में, वो भी वापस रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। तो इट्स ब्रिलियंट। आई थिंक जो स्कल्पचर एक लड़के ने बनाया है बहुत ही बढ़िया। आई थिंक बिहार से था, कहाँ से था वो लड़का? बिहार। उसने बताया कि भाई हमारे पापा जो हैं वो रोटी के लिए लड़ते थे, और एक रोटी के लिए लड़ना और रोटी के लिए ज़िंदगी में लड़ते पापा वहाँ पहुँचे, और पापा ने बेटे को एक और स्तर ऊपर बढ़ाया, और बेटा लड़ते सुपरमैन बनने की ट्राई कर रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें देखते हैं को मिलती हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। आर्टिस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग तो एक्टर हैं, एक्टर सब कुछ नहीं है, सारे काइंड ऑफ आर्ट होते हैं। तो ये जो आर्ट है जहाँ लोग अपनी मेहनत से को कैसे अपनी चीज़ें बनाते हैं, इनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हार्ट ऑफ आर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब आर्टिस्ट को खुद की वैल्यू क्या है वो समझ में आना बहुत ईजियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम ऑनलाइन पोर्टल पे उसकी फ़ोटो डालेंगे, उसकी पेंटिंग डालेंगे, चीज़ें डालेंगे, तो सपोज़ उसका प्राइस 45,000 है, इमीडिएटली बिक गया, तो आर्टिस्ट को पता है कि यार मेरा प्राइस इससे ज़्यादा है, अगली पेंटिंग वो 60 में बेचेगा, फिर 80 में बेचेगा। अगर नहीं बिकेगी तो आप बोलेंगे भाई 45 से थोड़ा 5-10 हज़ार कम कर दे, तो 35 में बिक जाएगी। तो दिस इज़ द वे टू गेट योर राइट प्राइस। प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो एक्टर को भी समझ नहीं आता ज़िंदगी भर काम करते करते कि मेरा रियल प्राइस क्या है। लोग कई 5 लाख ले लेते हैं, हमें बोलते भाई आपको 2.5 लाख दिया, बोला हाँ ठीक है दे दे, लेकिन हमारी प्राइस 5 लाख है, हमें पता नहीं चलता। हार्ट ऑफ आर्ट एक ऐसा ज़रिया बनेगा कि एक्चुअल प्राइस लोगों को पता चलेगा। सर, ऐसे टैलेंटेड लड़कों के लिए जैसा अभी आपने जिक्र किया, तो गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए इनके लिए? देखो गवर्नमेंट करती है। मैं बहुत जगह गया तो मोदी जी के फ़ोटोज़ थे, मोदी जी उन्हें सम्मानित कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, बहुत अच्छी फ़ोटो बनाई है, बहुत अच्छा काम किया है। तो अब गवर्नमेंट करती है, लेकिन पैसे गवर्नमेंट अभी नहीं दे सकती ना। वो गवर्नमेंट एक स्कूल में कुछ थोड़ा सा वो करा सकती है कि भाई फंड है, वो स्कूल को रिवाइव कर दिया, स्कूल को कुछ ग्रांट दे दी। लेकिन आर्टिस्ट की लाइफ बहुत हार्ड है। ये जो प्रोफेशन इनने चुना है, इस पे अगर घर चल सके तो बहुत बड़ी बात है। अब मैंने 5 साल की बच्ची देखी है, 5 साल की बच्ची आर्ट बना के बेचारी हार्ट ऑफ आर्ट में आके उसने अपना एग्जीबिशन में डाला है। एक 5 साल की बच्ची, एक 9 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा है, वो तीनों ने एक स्टॉल लिया हुआ है और वो अपने फोटोज़ डाल रहे हैं। दिख रहा है कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और जब तक वो बड़े होंगे तो वो उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बैंक में काम करते थे, किधर और गवर्नमेंट में काम करते थे, वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और हार्ट ऑफ आर्ट को ज्वाइन किया। तो उन्हें एक मौका मिल रहा है कि एंड ऑफ देयर लाइफ जो मतलब जो पहले यंग एज में तो कर नहीं पाए, क्योंकि पता है ये हमारा घर नहीं चला पाएगा, पर वो गलत है। एक आर्टिस्ट का घर यंग एज में और उसकी वैल्यू भी मरने से पहले अगर उसे समझ में आ जाए तो इट्स ब्रिलियंट, और दैट इज़ हार्ट ऑफ आर्ट का मकसद कि वी विल ट्राई एंड अचीव दैट। एब्सोल्यूट स्ट्रगल है, और आर्टिस्ट मोस्टली देखा है M.F. हुसैन जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो मतलब उनकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। वो चले गए लेकिन वो आर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो वैसे ही होता है,
आर्टिस्ट की वैल्यू उसको यंग एज में मिल जाए, उससे पैसे उसके घर चलाने में वो टाइम पे मिल जाए तो बहुत बेटर है। तो इफ़ यू रियली टैलेंटेड यू मस्ट गेट योर वैल्यू फॉर द मनी फॉर दैट आर्ट इन योर लाइफ। बाद में आपके बच्चे उसके साथ मज़े करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ही हो जाए, ये हमारा मकसद है। ट्राई कर रहे हैं कि हमें सबकी वैल्यू पता चले और हम सबकी वैल्यू बढ़ा सकें। उनको ब्रांड क्रिएट हमने ड्राइंग की है बहुत ही घटिया तरीके से। हमने ये जितनी भी चीज़ें हैं जो यहाँ आपने देखी हैं वो सारी हमने स्कूल में सीखी हैं। जब ना स्कूल में हमें बना के ये फ़ोटो रख के बोलते भाई ये बनाओ, तो हमने बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन कसम से बड़ी घटिया सी फ़ोटो बनती थी। और ये जो मधुबनी आर्ट है ये भी हमने सीखा है स्कूल में, तो इसीलिए हमें पता है कि इनकी कदर होनी चाहिए और इनकी वैल्यू क्या है। क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत शौक़ था, रोज़ शुरू हो जाती थी पेंटिंग करने, बोला हाय हाय मैं बेचांगी पेंटिंग, लेकिन कोई बेच नहीं पाए। हमारे रंजीत अंकल अपनी बेटी की पेंटिंग बना रहे 7-8 साल हो गए, कभी उसके फुल स्लीव कर देते, कभी उसके हाफ स्लीव कर देते, कभी उसकी टी शर्ट का कलर चेंज कर देते। अंकल ये पेंटिंग कब बनेगी? तो दैट्स हाउ इट इज़, इट्स नॉट ईजी। हर आदमी को लगता है मैं पेंट कर सकता हूँ, हर आदमी को लगता है मैं गा सकता हूँ, लेकिन सच बात नहीं है। दैट्स वाई आई वैल्यू दैम। एंड कोई भी चीज़ जो लोगों की भलाई के लिए हो, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, और उसमें अगर आप जोड़ते हो तो ऊपर वाला आपको पुण्य देता है। नहीं, मैं यही बोल रहा था कि ये आर्ट ऑफ आर्ट से एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है उन कलाकारों की जिन्हें हम पहचानते भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात लेता हूँ, MF हुसैन एक ब्रांड वैल्यू था, मैं जानता था, लेकिन इतने कलाकार है तो मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी नहीं जानते उनके बारे में। तो वो एक ब्रांड क्रिएट हो रहा है इस मार्केट की वजह से कि आज बिंदु भाई ने बोला प्राइस कैसे बनेगा जब वो ब्रांड बनेंगे, वरना पेंटिंग कोई भी करता है प्राइस कैसे डिसाइड करेगा। आज ये मेरा ब्रांड है, मेरी ये प्राइस है, ये शाहरुख खान है, ये राजन मोदी है, दोनों की प्राइस अलग है, दोनों एक्टिंग करते हैं। तो वो ब्रांड वैल्यू जो बन रही है वो आर्ट की वजह से। जो इनके थॉट्स हैं बिहाइंड दिस वेंचर जो ये कर रहे हैं, दे आर ब्रिलियंट। आई थिंक ज्योति आपको भी कुछ बताना चाहिए, सही आपका क्या प्लान है? किस तरीके से सारे लोगों को एक मंच पे लेके आए आप, कितना इजी था या कठिन था ये सारी चीज़ें? चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं वेन्यू से कि ये लोकेशन में आर्टिस्ट साउथ मुंबई छोड़कर आएंगे क्या। दिवाली से इतना टच हमारा इवेंट है, एकदम नेक्स्ट डे दिवाली है, तो लोग आर्टिस्ट यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे क्या। तो काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस हमने पिछले 1 साल में देखे और उसको पार करने की कोशिश की। आज ऐसा लग रहा है कि शायद हम सच में पार हो चुके हैं अच्छी तरीके से। बस मतलब बता नहीं सकते कि क्या क्या किया है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ किया है। जी। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अभी आज मैं सब स्टॉल पे बिंदु भाई के साथ गया, जिस तरह लोग दुआएं दे रहे थे बिंदु भाई को, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि क्या अनजाने में एक ऐसा काम हो गया जो शायद उस वक्त नहीं सोचा होगा कि किसी के मम्मी पापा आ रहे हैं कि सर आपने मेरे बच्चे के लिए ये किया, प्लेटफॉर्म दिया। तो मुझे ये लगा कि बिंदु भाई को जिस तरह से दुआएं मिल रही है शायद दूसरे काम से नहीं मिलने वाली थी। अचानक से इतना एक हार्ट ऑफ आर्ट एक्चुअली ये हो गया। जो जब ये लेके आए मेरे पास, अनिल लेके आया ज्योति जी और मुकेश जी को, बोला भाई ये ऐसा करना चाहते हैं। तो जब मैं इनका जो विज़न है वो सुना, तो विज़न बहुत दूर का है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टार्ट है। लेकिन जो इनका एक्चुअल जो थॉट है और जिस तरीके से ये जाना चाहते हैं, आओ मुकेश भाई इधर आओ, मेहनती है आप भी आओ। तो जो ये लोग ने सोचा था, जो इन्हें विजुअलाइज किया था, वो अगर आपको पूरा जिस दिन आपको समझ में आएगा तो वो बहुत हाई लेवल है, उसका कोई लेवल ही नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड द स्टार्स। तो मतलब जैसे एक बहुत बड़ा क्रिस्टीज़ है जो ऑक्शन करता है अलग अलग टाइप की चीज़ें, ये ब्रांड वैसा बनने वाला है कि इंडिया में इट विल बी अ डिफरेंट लेवल। अब सुनील शेट्टी जो बहुत ही ब्रेनी आदमी है, वो कभी अपना नाम कभी अपना फ़ोटो ऐसे देते नहीं है, आप सब जानते हैं सुनील शेट्टी को, बहुत ही ब्रेनी है। तो उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने कहा बिंदु आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। तो दैट इज़ वंडरफुल। बिकॉज ऑफ हिम जॉइनिंग अस, अन्ना इज ऑल्सो वेरी वेरी पर्टिकुलर। वो भी एक आर्टिस्ट की कदर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने मुझे आज जो बोलते हैं मेरे दिल में शांति हुई है, बहुत खुशी हुई है। क्योंकि हम जब अपना नाम देते हैं, अगर वो नाम सही तरीके से यूज़ ना हो तो बहुत दुख होता है। Now I'm very very proud that I'm a part of the Heart of Art family and I would always be here. एक आर्ट से रिलेटेड एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आर्टिस्ट जो इंडियन आर्टिस्ट है
वो इंटरनेशनली इतना बूस्ट नहीं कर पाते। तो हमारा मेन मकसद यही है थ्रू द शोज़ एंड ऑल कि हमारे अभी इंडिया में भी बहुत आर्ट बाय होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, काफ़ी करोड़ों करोड़ों में होता है, लेकिन इंडिया में बाहर के आर्टिस्ट का बाय होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार के आर्ट की कमी नहीं है, या ये आर्टिस्ट उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। इनके आर्ट भी उसी लेवल के, उसी से भी बेहतर भी है आर्ट लेवल। तो ये जो चीज़ है, जब तक वो घर से इनके बाहर निकलेगी नहीं और जब तक इन्हें कोई एक प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, तो ये पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट है वो बहुत फर्स्ट क्लास है और कहीं भी कम नहीं पड़ते हैं इंटरनेशनल लेवल से। और इसीलिए हम बहुत सारे इंटरनेशनल शो सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी हमारा द आर्ट ऑफ आर्ट जो है वो अभी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में हो रहा है। हमने दुबई भी डिक्लेयर कर दिया है, हमारा अप्रैल में दुबई में होने वाला है शो जो है। इसके बाद में हम एक और इंटरनेशनल वेन्यू लेंगे, फिर एक और इंटरनेशनल वेन्यू लेंगे, ताकि जब हम छोटे छोटे शोज़ इंडिया में करेंगे और इसमें जो क्रीम जो छन कर निकलेगा उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देंगे, ताकि इंटरनेशनली आर्ट इंडिया का सेल हो, ना कि इंडियन जो है जाके इंटरनेशनल आर्ट खरीद के ले आए। तो ये एक मकसद है जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें देखा गया कि इंडिया से जाके बाहर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वहाँ के लोग यहाँ आके यहाँ से चीज़ें लेकर जाते हैं, वहाँ पे एग्जीबिशंस लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी वैल्यू वहाँ डबल टिबल हो जाती है। जी, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? इसलिए हम डायरेक्ट आर्टिस्ट को ही वही ले जा रहे हैं। यहाँ से आर्टिस्ट खुद अपना आर्ट लेकर जा रहा है, तो उसे वही वैल्यू मिलेगी जो उसके आर्ट की है, ना कि कोई बीच में मीडिएटर होगा कि उसने यहाँ से परचेज़ की, और क्योंकि उनको मार्केट ही नहीं पता होता है। अगर हमारे साथ में आर्टिस्ट 2, 3, 4 शो करेगा तो उसे अपने आप इंटरनेशनल मार्केट पता चल जाएगा और उससे पता चलेगा कि मेरी इंटरनेशनल वैल्यू क्या है, और वो उसकी मतलब एक